ایک انقلاب کی کہانی لیبیا سے پاکستان۔ لیبیا پر معمر قذافی کی حکومت ہے اور سال ہے 2010۔ لیبیا میں پانی، بجلی، علاج اور تعلیم بالکل مفت ہے۔ ملک سے باہر پڑھنا چاہے تو 1600 یورو ماہانہ حکومت وظیفہ بھی دیتی ہے۔ لیبیا کی سرکار اپنا گھر ہر شخص کا حق مانتی ہے اور لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے۔ کاروبار کے لیے بلا سود قرضہ مل رہا ہے اور کھیتی باڑی کرنا چاہیں تو مفت 25 ایکڑ زمین اور ٹریکٹر ملتا ہے۔ شادی کریں تو نئی زندگی گزارنے کے لیے $50,000 اور بچہ پیدا کریں تو 2 سال تک دودھ پیمپر کا خرچہ بھی سرکار دیتی ہے۔ گاڑی فیکٹری ریٹ پر اور پیٹرول 8 سینٹ فی لیٹر مل رہا ہے۔ لیبیا میں تمام سڑکیں بالکل نئی بنائی گئی ہیں جن کی لمبائی فرانس اور جرمنی کی سڑکوں کی مجموعی لمبائی سے زیادہ ہے۔ لیبیا کا اپنا سیٹلائٹ پروگرام ہے اور وہ خلا میں خود اپنا سیٹلائٹ بھیج رہا ہے۔ معمر قذافی نے لیبیا کے صحرا کو سرسبز بنانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنایا ہے جس کو دنیا عجوبہ قرار دے رہی ہے۔ اس نہری نظام سے لیبیا کے کئی شہروں کو روزانہ 65 لاکھ کیوبک میٹر تازہ پانی مل رہا ہے۔ لیبیا افریقہ کا واحد ملک ہے جس پر کوئی بیرونی قرضہ موجود نہیں۔ لیبیا کے پاس $150 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ ملک میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام پرسکون اور خوش ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ میں یہ سب کچھ محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ لیبیا میں عرب سپرنگ داخل ہو گیا ہے اور عوام اب جمہوریت اور آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کو اچانک معمر قذافی غاصب اور ڈکٹیٹر لگنے لگا ہے۔ فیس بک پر معمر قذافی کے خلاف مسلسل نفرت انگیز مواد وائرل کیا جا رہا ہے۔ گو کہ انقلابیوں کی تعداد تھوڑی ہے لیکن اتنی ضرور ہے جس کو جواز بنا کر امریکہ اور مغرب انسانی حقوق کے نام پر لیبیا میں مداخلت کر سکے۔ امریکی اراکین کانگریس باغیوں کے حق میں بیانات جاری کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ مغرب نے لیبیا کی عوام کو آزادی دینے کا تہیہ کر لیا ہے اس معمر قذافی سے جس نے تمام مغربی کمپنیوں کو نکال کر لیبیا کے تیل کا کنٹرول لیبیا کی عوام کو دے دیا تھا۔ باغیوں نے فوج پر حملے شروع کر دیے، سرکاری گاڑیوں اور فوجی املاک کو جلایا جا رہا ہے۔ معمر قذافی کے حکم پر فوج نے بغاوت کو چلنے کے لیے سختی کی جس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں واویلا مچ گیا۔ مغربی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا کہ فوج عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ فورسز کے مظالم کی جھوٹی داستانیں سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پھیلائی جانے لگی۔ باغیوں کی ایک موت کو 10 بتایا گیا۔ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں حرکت میں آ گئیں۔ صرف چند ماہ پہلے تک مسیحا کہلانے والے معمر قذافی کو سوشل میڈیا اور مغربی میڈیا پر فرعون کہا جانے لگا۔ اس عظیم الشان پروپیگنڈا مہم نے لیبیا کی باقی عوام کو بھی کنفیوز کر دیا۔ کچھ باغیوں کا ساتھ دینے لگے اور کچھ حیران ہو کر خاموش ہو گئے۔ امریکہ کو لیبیا پر براہ راست حملے کا جواز مل گیا۔ وہ باغیوں کی مدد کے لیے خانہ جنگی میں کود گیا۔ یہ مارچ 2011 کے مناظر ہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لیبیا پر بمباری کر رہا ہے۔ باغی امریکی بمباریوں پر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس جنگ میں مقامی انقلابی، القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں اور مغربی اتحاد ایک پیج پر ہیں۔ انقلابی امریکہ کے ساتھ مل کر فتح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ معمر قذافی کو پکڑ کر بری طرح مارا جا رہا ہے۔ پھر اس کو گولی مارنے لگتے تو وہ گولی مارنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، بس وہ سارے مل کر زور زور سے قہقہے لگاتے ہیں اور معمر قذافی کو گولی مار دی جاتی ہے۔ اب لیبیا میں کسی کی حکومت نہیں۔ مختلف گروہ اور جماعتیں اقتدار کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور پورے ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے۔ بجلی، تعلیم اور علاج اب پیسوں پر بھی دستیاب نہیں۔ ملک میں خوفناک بے روزگاری آ چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں۔ لیبیا کی چمکتی ہوئی سڑکیں اور خوبصورت عمارات اب کھنڈر بن چکی ہیں۔ لیبیا کے تیل کے ذخائر اب پھر سے مغربی کمپنیز نکال رہی ہیں۔
वहाँ लीबिया की आवाम सिर्फ मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। लीबिया के 150 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स पर मगरिब ने कब्जा कर लिया है। शायद ये उस आजादी की कीमत वसूल की है जो उन्होंने लीबिया की आवाम को दी। लीबिया को आजादी मिल गई है, लेकिन वहाँ अब कुछ नहीं बचा। जिन लोगों ने बगावत की क़यादत की थी, उनकी बड़ी तादाद मगरिब ममालिक में शहरियत ले चुकी है, और जो कुछ लीबिया में हुआ वही सब शाम, इराक, मिस्र और यमन में भी हुआ। आजादी और जमहूरियत के नाम पर इन सब को खंडर बना दिया गया। वहाँ के लोग इस नाम नेहाद आजादी से पहले के दौर को याद करते हैं। أمريكا هي اللي السبب الفوضى اللي في ليبيا. طيحت القذافي مدارس بديل، خلتنا فوضى حرب في بعضنا. قذافي نو أمريكا تو هذول كلهم. Now you would take Gaddafi back? أنا قاتلت في جبهة زندان وفي جبهة بن وليد ضد القذافي. ناو كان في قذافي أنا في قاتل مع قذافي. अरब स्प्रिंग की कामयाबी की खुशी में सदर बाराक ओबामा ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के लिए व्हाइट हाउस में एक खसूसी ज़ियाफत का एहतमाम किया। वहाँ वो अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया के खसूसी किरदार का एतराफ़ करते हुए मार्क जुकरबर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं। अरब स्प्रिंग की लपेट में आने वाले कई ममालिक खंडर बन गए, लेकिन एक मुल्क बच गया था, पाकिस्तान। अरब इसराइल जंगें हुई। अमेरिका ने इराक से बराह रास्त भी जंग की, लेकिन अरब स्प्रिंग आखिरी कील साबित हुई। चंद नारे और सोशल मीडिया देखते ही देखते कई अरब मुल्कों को निगल गया। बाकियों ने घबराकर पेशबंदियां कर ली। लीबिया के तजुर्बे ने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात साजिशें जंगों से ज्यादा तबाहकुन साबित होती हैं, और महज चंद नारे देकर आप अवाम से कुछ भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान पर भी कई कड़े वक्त आए, पाकिस्तान भी कई इम्तहानात से गुजरा, लेकिन नुकसान सिर्फ उस जंग में हुआ जिसमें अवाम को फौज से अलग करने की साजिश की गई। याद रहे, उस वक्त भी अवाम को शेख मुजीब ने आज़ादी का ही नारा दिया था। खवारिज को मजहबी लिबादा उड़ाकर नई मुक्ति बाहिनी की शक्ल में पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिसका मौका इनको 9/11 के फौरन बाद मिला। एक अशरे से जायद पाकिस्तान की फौज ने घमसान की जंग लड़ी, लेकिन अवाम ने खवारिज के बजाय अपनी फौज का साथ दिया। पाकिस्तान फतह याब हुआ। ये तय हो गया कि पाकिस्तान की फौजी ताकत खत्म किए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ फतह मुमकिन नहीं, और पाक फौज को खत्म करने के लिए अवाम को उनसे अलग करना जरूरी है, जैसा कि 71 में किया गया था और जैसा लीबिया और इराक में किया गया। ये आमतौर पर माना जाता है कि एक आलमी एस्टेब्लिशमेंट वजूद रखती है। ये भी माना जाता है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को यहूदी कंट्रोल करते हैं, और ये भी माना जाता है कि इन यहूदियों को 2 फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली और गोल्डस्मिथ फैमिली। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को लीबिया बनाने के लिए साजिशों के बीज कब और कैसे बोए गए। गोल्डस्मिथ और इमरान खान का पाकिस्तान पर हमला कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित मरहलावार साजिशों की एक दास्तान है। इन साजिशों को समझने के लिए 4 मराहिल का तफसीली जायजा बहुत जरूरी है। पहले मरहले में साजिशों की जड़ें मजबूत करना था, जिसके लिए इमरान खान का चुनाव और तैयार किया गया। दूसरे मरहले में साजिश को तकवीयत देने के लिए इमरान खान को अवतार का दर्जा देने का आगाज हुआ और उसकी मीडिया कैंपेन का आगाज हुआ। तीसरे मरहले में साजिश को अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाया गया। चौथे और आखिरी मरहले में इंतशार और खाना जंगी को परवान चढ़ाने की सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी गई।
90 की दहाई में पाकिस्तान के एक मकबूल क्रिकेटर की इसी गोल्डस्मिथ फैमिली में शादी होती है, जिसके बाद वो फौरन सियासत में छलांग लगा देता है। उसकी सियासी सीवी को वर्ल्ड कप और शौकत खानम अस्पताल से सजाया जाता है। यूं इसको बैक वक्त एक हीरो और मसीहा बनाकर पेश किया जाता है। इमरान खान। इमरान खान की जिंदगी में बहुत सी खूबरू खवातीन आई। जीनत अमान के साथ उसका अफेयर बहुत मशहूर हुआ, जिसका डायलॉग नाम बड़ा दर्शन छोटे आज भी जबान ज़द-ए-आम है। रेखा के साथ भी उसका नाम मीडिया की जीनत बना। सीता वाइट, सलमा आगा, नाहिद अख्तर और अनीता अयूब जैसी खवातीन भी इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके आसेब में रही, लेकिन उसने चुना तो जमाइमा गोल्डस्मिथ को। ये उससे उम्र में आधी एक यहूदी खानदान की औरत थी। फिर यही क्यों? शायद उस वक्त ये फैसला हो चुका था कि ये गोल्डस्मिथ का अनडू पाकिस्तान का अहम मोहरा होगा। दूसरी तरफ अरबपति 18 साला जमाइमा, जिससे शादी को अरबपति गोरे, रसल ब्रांड, कार्ल रिची, ह्यूज ग्रांट जैसे लोग मर रहे थे, उसने इस मिडिल क्लास क्रिकेटर से शादी क्यों की? उसी दौर में कुछ लोग इमरान खान के हवाले से लोगों को खबरदार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। आज भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जीव वर्ल्ड ऑर्डर दर हकीकत यहूद की रेशा दवानी, जिसका शिकार अभी आपका इमरान खान भी हो गया है। वो ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी 1776 में कायम किया गया था, यहूदियों की साजिश। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड, गोल्डस्मिथ। इमरान खान के खिलाफ किताब लिखने वाले हकीम मोहम्मद सईद पुरस्रार अंदाज में कत्ल हो जाते हैं। बाद में भी यही सिलसिला चलता रहा। अलगर्ज इमरान खान के सियासी करियर में कई ऐसे लोग कत्ल हो गए जिनका कत्ल होना इमरान खान के लिए जरूरी था। हत्ता कि अब्दुलसत्तार इधी ने ये इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान ने मुझे अगवा करके कत्ल करने की धमकी दी थी। बेनजीर को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला के हटाना चाहता। मैं इनको इनकार कर। कौन था उस ग्रुप में? इमरान खान ऐसे ग्रुप। मुझे कहा आखिरी में, आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे और बयान दे देंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने इक़्तिदार के हसूल की पहली कोशिश परवेज मुशर्रफ की मदद से की। इमरान खान ने परवेज मुशर्रफ को वोट दिया और इसके लिए मुहिम भी चलाई। तब इमरान खान को उनके डिक्टेटर होने या अमरीकी इत्तेहादी होने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन दोनों में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। जब 2002 इलेक्शन आ रहे थे तो द सीट एडजस्टमेंट, हाउ मेनी सीट शुड हिज पार्टी हैव, हमने जो चेक किया था वो पार्टी में उन्होंने कहा था कि 4-5 सीटें इनकी हैं, वो देने मैंने इनको ऑफर किया को 8-10 डबल करके। He thought that there is a groundswell and he needed about 90 to 100. Now there was a lot of difference between इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी? Yes, 92. He said thought that इतना उनके सपोर्ट है, which was not correct. On ground ये बात नहीं थी। जिसके बाद इमरान खान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गया। इस दौर में इमरान खान ने कई मकबूल नारे लगाए, मसलन मैं आफिया सदीकी को वापस ले आऊंगा, ये जंग अमरीकी मफाद की है, वगैरह वगैरह, लेकिन मतलूबा पजीराई ना मिली। साल 2011 में इमरान खान ने एक नया नारा लगाया। ऐसे जलसे और नारे लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब होने लगे। इमरान खान ने तब्दीली का नारा, रंग बिरंगा झंडा और कॉन्सर्ट टाइप जलसों का आइडिया बाराक ओबामा से लिया था। इसी दौर में पाकिस्तान के तुलो अर्ज में लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए। इमरान खान ने अपनी सारी तवज्जो और सरमाया सोशल मीडिया पर लगाना शुरू कर दिया और वहाँ हर तरफ इमरान खान नजर आने लगा। हमारी पार्टी पावर में आई सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरफ अब पाकिस्तान निकल गया है, आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। इसी दौर में इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों की हिमायत भी हासिल हो गई थी।
انتخابات میں شکست پر اس نے 2014 میں ڈی چوک میں دھرنا دے دیا۔ دھرنے کی ایک اور وجہ چین کے صدر کی پاکستان آمد میں رکاوٹ ڈالنا تھا۔ پی ٹی وی پر حملے کے بعد اس نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کی کوشش کی، جس کو پولیس آپریشن کر کے روکنا پڑا۔ پولیس آپریشن کے بعد عمران خان کنٹینر پر تنہا رہ گئے اور بہت امکان تھا کہ گرفتار ہو جاتے۔ عین اسی وقت پشاور میں سانحہ APS ہوتا ہے۔ خوارج کے ہاتھوں 150 بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ریحام خان کے مطابق عمران خان بنی گالہ میں داخل ہو کر کہتے ہیں، بیبی شکر ہے دھرنے سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر بچوں کے مرنے کا غم نہیں بلکہ دھرنا ختم ہونے کی خوشی تھی۔ عمران خان حکومت تو نہ گرا سکا، لیکن سوشل میڈیا پر اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ یہ مقبولیت بڑے بڑے جلسوں کی شکل میں نظر آنے لگی۔ سال 2017 آتے آتے پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے آخری بڑی جنگ جیت لی۔ دہشت گردوں سے تمام زیر قبضہ علاقے چھڑا لیے گئے اور وہ افغانستان میں چھپتے پھر رہے تھے۔ ملک میں نسبتاً معاشی استحکام تھا، چیزیں نسبتاً سستی تھی۔ پیٹرول 80 روپے لیٹر، بجلی 11 روپے یونٹ اور آٹا 37 روپے کلو مل رہا تھا۔ ڈالر روپے کے مقابلے میں 105 کا تھا۔ پاکستان IMF کے پروگرام سے نکل چکا تھا۔ وسطی ایشیا کے ساتھ تاپی گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو گیا، جس سے پاکستان کی توانائی کا بحران ختم ہو جاتا۔ پاکستان چین کے ساتھ مل کر دنیا کے سب سے بڑے معاشی منصوبے سی پیک پر کام شروع کر چکا تھا، لیکن تبدیلی کا نعرہ اور عمران خان کا طاقتور سوشل میڈیا عوام کو کچھ اور ہی خواب دکھا رہا تھا۔ اسی دوران عمران خان کی زندگی میں ایک اور پراسرار کردار کی انٹری ہوتی ہے، بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی۔ کسی کے گھر میں جا کے جھانکنا، کسی کے گھر میں جا کر اس کے تعلقات بنانا، کسی کے گھر میں جا کر اس کی بیوی جو ہے اسے طلاق دلوا کر اپنی بیوی بنا لینا، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے اخلاقیات ہیں۔ اور کیا اس پر بحث کروں، مجھے میری شرافت اجازت نہیں دی تھی کہ میں اس پہلو پر اس کو ڈسکس کروں۔ اس کی پیشن گوئی قندیل بلوچ نے 2 سال پہلے کر دی تھی۔ تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جا رہے دم ضرور کروانے کے لیے، اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی، وہ بھی اسی عورت نے ان کو دی تھی۔ مجھے سارا پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آج کل، کس کے پاس جا رہے ہیں دم ضرور کروانے کے لیے، میرے پاس ساری رپورٹ ہے۔ جس کے بعد وہ بھی قتل کر دی گئی۔ انتخابات سے پہلے عمران خان عوام سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ بڑھائیں گے، گروتھ ریٹ بڑھائیں گے، 50 لاکھ ہم نے سستے گھر بنانے ہیں 5 سالوں میں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ سال 2018 میں عمران خان اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو فوج، میڈیا اور عدلیہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ عمران خان نے عوام سے جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ تباہ کن مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ بہت مشکل ہے سچی کمانا، مشکل ہو گیا بہت زیادہ۔ حقیقت میں گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا، لیکن سچ کی بات ہے۔ پہلے میں اپنے ٹائر پنچر کا کام کرتا تھا، خوش بنتا، مگر حالات نے ایسے کیا کہ میں دکان کا کرایہ نہیں بھر سکی، جس سے میری آمدنی نہیں تھی۔ IMF سے تاریخ کا بدترین معاہدہ کیا گیا اور اسٹیٹ بینک IMF کے پاس تقریباً گروی رکھ دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا گیا اور اس کو بہت تیزی سے غیر پیداواری سرگرمیوں، کرپشن اور صدقہ خیرات کے پروگراموں میں اڑا دیا گیا۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھا۔ 3444 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ ہے ایک سال کے اندر، 8.9 percentage point of GDP فسکل ڈیفیسٹ سنگل ایئر، اور ٹیکس ریونیو نو گروتھ، پرہیپس نیگیٹو میں ہے، 3830 ارب روپے۔ قومی خزانے میں صرف 9 ارب ڈالر تھے، جن میں سے 6 ارب ڈالر چین، سعودی عرب اور UAE کے پارک کردہ تھے۔ حکومت ہر تھوڑے دن بعد ملک دیوالیہ ہونے کی خوشخبریاں سنانے لگی۔
Pakistan as an entity bankrupt है सर। सी पैक को रोक दिया गया। सी पैक मुआहिदों की तफसीलात चीन की इजाजत के बगैर अमेरिका से शेयर कर दी गई। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा रोक दिया गया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को फ्रीज रखा गया। मुल्क में करप्शन का हर रिकॉर्ड टूट गया। कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर दी। नहीं वो कहती मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी कम कर उन्हें मैंने कहा। रमा साल 28 अप्रैल को नैब की जानिब से फराह खान के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन से असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात के तहत तहकीकात का आगाज हुआ। सिर्फ मुआशी तबाही नहीं हो रही थी, इमरान खान ने मुस्लिम मुल्कों की इकलौती तंजीम OIC तोड़ने की भी कोशिश की और इसके मुकाबिल नया ब्लॉक बनाने में नाकाम रहा। लेकिन इस सारे किस्से में बैक वक्त सऊदी अरब, UAE, तुर्की और मलेशिया को पाकिस्तान से नाराज कर दिया। चीन को सी पैक पर नाराज किया। रूस जाकर रूस यूक्रेन जंग का इफ्तिताह कराया। ये हुक्म भी जारी किया कि कोई शख्स रूस यूक्रेन जंग की मजम्मत नहीं करेगा। कश्मीर इंडिया ने खुद में जम कर लिया। इसने आलमी अदालत या अक़वाम मुत्तहिदा जाने के बजाय अवाम को चंद मिनट की खामोशी इख्तियार करने और मोदी की तस्वीर देखकर हॉर्न बजाने का हुक्म दिया। अमेरिका अफगानिस्तान में असलहे का अंबार और दहशतगर्द छोड़कर निकलने लगा तो इन दोनों चीजों के हवाले से इसने कोई एक शर्त मनवाए बगैर अमेरिका की भरपूर सहूलतकारी की। इसी पर बस नहीं किया, हजारों जानों की कुर्बानियां देकर भगाए गए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस ले आया। जिनको पकड़ा गया था उनको जज्बा खैर सुगाली का नाम देकर रिहा कर दिया गया। इस मामले में जनरल फैज हमीद उसका दस्ते रास्त बना रहा। इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहाँ। पाकिस्तान में अमूमन सियासतदान वादे पूरे नहीं करते, लेकिन जो कुछ इमरान खान कर रहा था इसने फौज की आला क़यादत और मुहिब्बे वतन हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। आर्मी पब्लिक स्कूल की दूसरी साल गिराया। 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है हमने। मियाँ वाली, DG खान और चौंसा। हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, कायदे आज़म की तो कोई जरूरत नहीं थी। जब वो कैंसर से मर रहे थे उन्होंने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। काठमांडू के नेपाल में अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। 1600 180 औसत आमदनी थी। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, 95 और 92 के बीच में 7 सालों में सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं। फौज ने साइट पर होने का फैसला कर लिया। जनरल फैज हमीद को DG ISI के ओहदे से हटा दिया गया। तब्दीली का नारा एक भयानक फरेब साबित हुआ। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में बददिली फैल गई और साथी अरकान भी पार्टी से बागी होने लगे। और खसूसी तौर पर पंजाब का सत्यानाश किया जा रहा है और जो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पंजाब को यहाँ बैठाया गया है और ये कहा जा रहा है कि सब बहुत अच्छा जा रहा है। आखिर हमने आवाम में जाना है, आखिर हमने लोगों से बात करनी है, आखिर हमने लोगों को जवाब देना है कि हम तो तब्दीली की पार्टी थे और हमने क्या तब्दीली लाई थी 5 सालों के अंदर। इन सब ने 40 लोगों ने आज जो है वो अलग। अच्छा 40 मेंबरान है, 32 सूबाई असेंबली के और 8 कौमी असेंबली के। जी 8 कौमी असेंबली के 40 टोटल लोग थे। 5 फरवरी 2022 को बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान करते हुए दावा किया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और आज हमारा अदम एतमाद पेश हो चुका है। अब 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। 8 फरवरी को MQM और बाप पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का इंदिया दे दिया।
जबकि 17 फरवरी को इमरान खान ने दावा किया कि हमने तहरीक अदम एतमाद से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। न अभी रूस का दौरा हुआ था और न असद मजीद और डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई थी। 23 फरवरी को इमरान खान रूस गया। 28 फरवरी को इमरान खान ने अचानक पेट्रोल 160 से 150 कर दिया और बिजली 20 रुपए से 15 करके IMF मुआहिदा तोड़ दिया। तो मैं बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। तो हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन 2 चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। 5 रुपए यूनिट बिजली और 10 रुपए बल्कि 20 रुपए पूरा बनता है पेट्रोल और डीजल का। जिस पर बाद में शेख रशीद ने तबसरा किया कि हमने आने वाली हुकूमतों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ उसमें था ना जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। तहरीक अदम एतमाद में अपनी यकीनी शिकस्त देखकर इमरान खान ने फौज से मदद तलब की। फौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो 6 मार्च को मेलसी जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है। साथ ही अपोजिशन को धमकी दी कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो आप इसके लिए तैयार रहें, जो मैं आपके साथ करूँगा। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। 7 मार्च को शहबाज गिल समेत PTI रहनुमाओं ने बैरूनी साजिश का बयानिया चलाकर फौज पर दबाव डालना शुरू किया कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत हो रही हो तो फौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। उसी दिन पाकिस्तानी सफीर असद मजीद और डोनाल्ड लू की अलविदाई मुलाकात हुई। असद मजीद ने शिकवा किया, मेरी मुद्दत खत्म हो गई लेकिन आपने सदर जो बाइडेन की हमारे वजीर आजम से बात नहीं कराई। ये सुनकर डोनाल्ड लू ने भी अपने शिकवों की पिटारी खोल दी और कहा कि इमरान खान ने 2020 के अमेरिकन सदारती इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। इमरान खान पब्लिक में अमेरिका के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। रूस हमारे इत्तेहादी यूक्रेन पर हमला किया तो आपका वजीर आजम वहाँ मौजूद था, तो मैं किस तरह जो बाइडेन को इमरान खान से बात करने पर राजी करता। असद मजीद ने ये सारा कुछ एक मरासले की शक्ल में लिखकर भेजा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, इस पर तवज्जो देनी होगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक हमारे सिफारत खानों के ज्यादातर मरासले सेक्रेटरी खारजा, DGISI और GHQ जाते हैं। असद मजीद के मुताबिक साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर टेलीग्राम फॉरेन सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी से होता हुआ इमरान खान तक पहुंचा। साइफर की शक्ल में इमरान खान को अपने बैरूनी साजिश वाले बयानिए में हवा भरने का मौका नजर आया। इमरान खान ने आजम खान के साथ मिलकर इसकी मंसूबाबंदी की। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की। ऐन तहरीक अदम एतमाद के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने OIC, चीन और रूस की करारदाद मंजूर करते हुए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन करार दे दिया। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को दे दिया गया, जिससे उस नाजुक मौके पर इसको जबरदस्त सियासी सहारा मिला। 27 मार्च को परेड ग्राउंड में इमरान खान ने एक कागज लहराकर कहा कि हमें लिखकर धमकी दी गई है कि हुकूमत छोड़ दो। फौज ने साइफर को नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में लाने का मशवरा दिया। मीटिंग में ये बात तय हो गई कि साइफर के तहत कोई साजिश नहीं हुई थी। डोनाल्ड लू की जबान नापसंदीदा थी और हमारे मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ थी, लिहाजा इस पर सिफारती एहतजाज कर लेते हैं। बाहर निकलकर इमरान खान ने कहा कि वो मान गए हैं कि साजिश नहीं मुदाखलत हुई है। इमरान खान के इस मकर ने फौज को भी हैरान कर दिया। वोटिंग से चंद दिन पहले आमिर लियाकत ने दावा किया कि असल गद्दार इमरान खान है और वो कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो अगर बता दी तो जलजला आ जाएगा।
मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार थे। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क़यामत आ जाएगी। जिसके कुछ दिन बाद आमिर लियाकत भी पुरस्रार अंदाज में अल्लाह को प्यारे हो गए। वोटिंग के दिन कासिम सूरी के जरिए इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी को आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया। भी आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश का इल्जाम नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा केस करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा है कि अदालत बैरूनी मदाखिल से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला भी गैर आइनी करार दे दिया। वजीर आजम की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने असको नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। ऐवान में जब अक्सरियत कम हुई तो अदम एतमाद में शिकस्त हो गई। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. हुकूमत गिरी तो इमरान खान ने हकीकी आजादी का नारा मारा। मैं आज अपने मुल्क के किसानों को, मजदूरों को, रेड़ी वालों को, टैक्सी वालों को, रिक्शा वालों को, वो सब लोग जो इस वक्त कमजोर और पिसा हुआ तबका है, मैं आज सबको दावत दे रहा हूं कि मेरे साथ मिलकर इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद में आपने सब ने शिरकत करनी है। तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के अगले दिन ही इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। हालांकि नई हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी थी। असम्बली में रहकर इसको गिराना आसान था। 25 मई को इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया। इसमें हुकूमत नए इंतखाबात पर रजामंद हो गई तो इमरान खान ने शेखी मारी कि हुकूमत को 6 दिन का टाइम देता हूँ वरना दोबारा आऊंगा। इमरान खान के इस बयान के बाद पीडीएम हुकूमत अड़ गई। इसके बाद दोबारा इसने जनरल बाजवा से मदद मांगी और बदले में ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश भी की। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मामला एक्सटेंशन का ही है तो एक्सटेंशन तो हम भी दे सकते हैं आपको। अक्टूबर में पाकिस्तान के मशहूर एंकर अरशद शरीफ को नैरोबी पुलिस गोलियां मारकर शहीद कर देती है। इमरान खान और इसकी सोशल मीडिया टीम ने फौरी तौर पर कत्ल का इल्जाम फौज पर डाल दिया। अरशद शरीफ पीटीआई केपी हुकूमत के थ्रेट अलर्ट पर दुबई गया। वहां से वो पीटीआई रहनुमा और इमरान खान के साथी की फरमाइश पर उसका मेहमान बनकर कीनिया गया, जहां उसी के घर और फार्म हाउस में रहा। मेरे पास ये जो दस्तावेजात पड़े हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है और इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं बैरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सकें, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहां पे ये वकालत भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे कशकोल उठा लिया। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं असद उमर साहब, पीली टाई पहन के, मुस्कुराहटे, हैंडशेक IMF डेलीगेशन के साथ। और ये मुस्कुराहटें उस वक्त हैं जब बाज़ाब्ता तौर पे कशकोल पेश किया कि जनाब हमें कुछ बेल आउट चाहिए, जिसको इमरान खान साहब कहते थे भीख मांगना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कहती थी भीख मांगना। अरशद शरीफ फौज का हामी एंकर समझा जाता था, लेकिन सबसे बढ़कर अरशद शरीफ जनरल आसिम मुनीर का फैन था। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निफ्स आदमी हैं और हाफिज कुरान भी हैं। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फौज के लिए।
नवंबर में इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए एक और लॉन्ग मार्च किया। इसी मार्च में इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग हुई। इमरान खान के मुताबिक उन पर दर्जनों गोलियां चलाई गईं, लेकिन सिर्फ उनकी टांगों पर लगी और छत पर खड़े बाकी किसी शख्स को नहीं लगी। इमरान खान वहां फर्स्ट एड लेने के बजाय 100 किलोमीटर दूर शौकत खानम गया, जहां उसकी दोनों टांगों पर प्लस्तर चढ़ा दिया गया। हैरानकुन बात ये है कि हड्डियों को गोलियां नहीं लगी तो प्लस्तर क्यों लगाया गया? अगर जख्म इतने शदीद थे तो बगैर फर्स्ट एड लिए 2-3 घंटे का सफर कैसे किया गया? बाद में जब इमरान खान को बार बार अदालतों में तलब किया जाने लगा तो वो व्हील चेयर पर बैठ गए, जिससे वो 9 मई के दिन उठे। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया उसी दिन खवारिज ने भी अपना सीज फायर तोड़ दिया। इमरान खान ने हमले के बाद अपना मेडिको लीगल नहीं करवाने दिया, जिसके बगैर FIR नहीं कटती। जब मेडिकल टीम भेजी गई तो मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वावेला किया कि मेरी मर्जी की FIR नहीं कट रही। इमरान खान की हुकूमत में हर महाज पर जो तबाही फैली थी उसमें सिर्फ एक चीज बच गई थी, पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज अब इमरान खान और PTI के निशाने पर है। इमरान खान ने आजादी का जो नया नारा कौम को दिया है उसका रुख फौज की जानिब मुड़ चुका है। इमरान खान कहता है कि अपोजिशन जमातें और फौज अमरीकी गुलाम है, मैं तुम्हें अमरीकी गुलामी से आजादी दिलाऊंगा। पाक फौज को मीर जाफर और मीर सादिक कहा जाने लगा। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूँ, तुम हो वो मीर जाफर। पार्टी में फौज के खिलाफ बाकायदा जहन साजी की जाने लगी। जनरल बाजवा के जाने के 1 माह बाद इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की ट्रोलिंग शुरू करवा दी। साथ साथ DGC जनरल फैसल नसीर पर भी हमला आवर हुए और उसको डर्टी हैरी करार दिया। PTI सोशल मीडिया ने इस मामले में कयामत मचा दी। साल 2021 में जो बाइडेन की तवज्जो हासिल करने के लिए इमरान खान की लॉबिंग फर्म ने एक अनोखी तरकीब की थी। HBO नामी फिल्मी चैनल पर इमरान खान का एक प्लांटेड इंटरव्यू कराया, जिसमें एक प्लांटेड सवाल का प्लांटेड जवाब दिया गया, एब्सोल्युटली नॉट। फिर इसको खूब वायरल किया गया। इसी इंटरव्यू में इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक में नहीं हूँ। Is your goal vis-a-vis India and Pakistan nuclear disarmament? I'm completely against nuclear arms. We will not need to have these nuclear deterrents. इसी तरह जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यूक्रेन के इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक ने इमरान खान को खत लिखकर अपील की कि आप इस हमले की मुजम्मत कर दें, क्योंकि रूस ये तासुर दे रहा है कि गोया जंग के लिए रूस को पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। दुनिया भर में इस तरह की सिफारती अपीलें की जाती हैं, लेकिन उन दिनों तहरीक अदम एतमाद चल रही थी तो इमरान खान ने इस अपील को भी मगरिब की धमकी का नाम देकर जलसों में तकारीर शुरू कर दी कि क्या हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। हुकूमत गिरने के बाद आजादी का जो नया नारा लगाया गया, इसको एब्सोल्युटली नॉट और क्या हम कोई गुलाम है का तड़का बार बार दिया जाने लगा। इसी असना में नई हुकूमत ने इमरान खान पर करप्शन के केसेस बनाए। इमरान खान और बुशरा बीबी ने उनको भी गद्दारी से लिंक कर दिया। अपने पैरोकारों को बताया गया कि मेरे खिलाफ करप्शन का हर केस दरअसल तुम्हें आजादी लेने से रोकने की कोशिश है। तो लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक अब है जी। ये पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही। में इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना दे। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जमान पार्क पहुंचो और खान हमारी रेड लाइन के ट्रेंड चलवाए। इमरान खान जमान पार्क में कलाबंद रहे। इसी असना में इमरान खान ने पंजाब और KP की सूबाई असेंबलियां भी तोड़ दी। पुलिस कई बार वारंट लेकर गिरफ्तार करने गई
तो हजारों कारकुनों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। जिन खवारिज को वापस लाया गया था उन्होंने जमान पार्क की सिक्योरिटी संभाल ली। अब पुलिस एहलकारों का इस्तकबाल पेट्रोल बमों से होने लगा। यार क्या गंद है, मैं वहाँ जाती हूँ जमान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलानी का हो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और उसकी फलानी है। और मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार। आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे की असैसिनेशन करते हैं। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। तो अब ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना करना। तुम नोशिन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ऐसी बात है, ठीक है। इमरान खान के हामियों ने ट्वीट्स की कि हेलीकॉप्टर लाया गया तो हमारे ट्रेंड मुजाहिदीन उसे भी गिरा देंगे। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मसीहा, अवतार, हत्ता कि कुछ लोगों ने इमरान खान को नबी भी करार दे दिया। मैं तो एक इबादत समझ के ना इमरान खान के पीछे खड़ी हूँ, क्योंकि वही के पीछे खड़ा होना भी इबादत है। आपने बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं, आप डेफिनेट कर सकती हैं। मैं डेफिनेट इस तरह से कर सकती हूँ कि उस दिन जब इधर इमरान खान आया, मैंने जो खवाओं का रुख चेंज होता देखा है ना, ये मेरा आंखों देखा मौजज़ा है, इसको मैं मौजज़ा कहूँगी। ये मौजज़ा मेरे सामने हुआ है। पीटीआई रहनुमा ये कहने लगे इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस दौरान इमरान खान पूरी शिद्दत से हर चीज का जिम्मेदार फौज को करार देने लगा। वो लोगों को कह रहा था कि कुरान कहता है गुलामी से बेहतर है मर जाओ, लेकिन गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया। 7 मई को इमरान खान ने एक मीटिंग की जिसमें फैसला किया गया कि इसको गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमले किए जाएंगे। अवाम की बड़ी तादाद को इन हमलों के लिए तैयार कर लिया गया। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के बाद? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। दोस्तों कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहाँ पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ISI के खुफिया दफातर की रेकी की गई। इन हमलों के लिए रिटायर्ड जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को यकीन दिलाया कि ऐसे हमले हुए तो फौज के अंदर बगावत हो जाएगी और बागी फौज इमरान खान का साथ देगी। पीटीआई रहनुमा खुलकर फौज को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत की दावत देने लगे। आर्मी हाउस को सर इनको अटैक करना है, मॉब को अटैक में लफ्ज गलत शायद इस्तेमाल कर दिया। इन्होंने आर्मी हाउस का घेराव करना है। इन्होंने जब बाजवे का घर है इनको इन्होंने उसके घेराव करने। दे हैव टू गो जहां पर इन लोगों की अपनी जाती इनकी इंटरेस्ट हैं। आर्मी हाउस को इनको घेराव करके एंटर करना है, इनको अब बाजवे का घर एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच करना है। ये चकलाला के अंदर घुसे, DGISI के घर जाएं, फैसल नसीर के घर जाएं, बाजवे के घर जाएं, आसिम के घर जाएं। ये 4 बंदे जो है ना जी, इसको नहीं छोड़ना। ये 4 घर है, मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, अगर सुन रहे हैं और ये बात हमारी सर इस वक्त सर 20,000 लोग लाइव सुन रहे हैं आपको। पाकिस्तान का कोई मेन स्ट्रीम चैनल भी 20,000 लाइव पे नहीं बैठा हुआ सर, 20,000 लाइव लोग बैठे। ये जो 20,000 लोग हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है ना गुस्से को और चैनलाइज करें। आपने ये 4 हदफ की तरफ जाना है। पुलिस नाकामी पर 9 मई को रेंजर्स को इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के 36 शहरों में पीटीआई कारकुनों ने 200 जगह फौजी तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए। ये बिल्कुल अरब स्प्रिंग जैसे हमले थे। ऐन हमलों के दौरान इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू कर लिया। चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने इमरान खान से दरखास्त की कि कम से कम हमलों की मजम्मत ही कर दें, तो इमरान खान ने निहायत रऊनत से जवाब दिया कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही सब होगा। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूँ कि आज के लिए तैयार हो जाए। यही 9 मई लीबिया, इराक, शाम और मिस्र में भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में ये बगावत नाकाम रही। इमरान खान की तवक्कुआत के बरक्स फौज की तरफ से कोई मुजाहमत नहीं हुई। यूं फौज की गोली से कोई एक लाश नहीं गिरी जिसकी उम्मीद थी।
نہ ہی فوج کے اندر کوئی بغاوت ہوئی۔ اس ناکام بغاوت نے تحریک کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ زمان پارک سنسان ہو گیا۔ عمران خان دوبارہ گرفتار ہوا، لیکن اس بار کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں اٹھی۔ پاکستان 9 مئی سہ گیا۔ مئی کی ناکام بغاوت کے بعد پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی۔ عمران خان نے عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور الزام لگایا کہ پولیس پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، لوگ نکلیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین نے خود ہی اس الزام کی تردید کر دی۔ مختلف باتیں چل رہی تھی کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جیل جانے کے بعد عمران خان نے 5 بار لوگوں کو نکلنے کا کہا، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ گنتی کے لوگ بکھرے ہوئے لوگ، پتھر برساتے، رکاوٹیں گراتے، چیختے چلاتے لوگ۔ پی ٹی آئی لاہور جلسہ ناکام ہوا، میدان خالی رہا تو پی ٹی آئی والے آپے سے باہر ہو گئے۔ سارا وقت فساد مچاتے رہے، بڑے بڑے پتھر گراتے رہے، کنٹینروں کو نشانہ بناتے رہے۔ لیکن سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کا بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک موجود ہے جس میں ہزاروں لوگ باقاعدہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی وہ طاقت ہے جسے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان، صحافی، بیوروکریٹ اور جج بھی خائف نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ سالوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہ سوشل میڈیا میں کی ہے اور بڑی یونیک میکینزم بنائی ہے جس کو پوری طرح سمجھنے میں شاید ابھی تک ہمیں کئی سال لگیں گے۔ پاکستان کے 50 سے زائد بڑے اینکر، صحافی اور غیر ملکی میڈیا کا بہت بڑا حصہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ مقبول جان اور عمران ریاض جیسے اینکر اور صحافی نہ صرف پی ٹی آئی ٹرینڈز میں حصہ لیتے ہیں بلکہ ان کے حق میں جھوٹی خبریں بھی وائرل کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ امریکہ اور برطانیہ جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدلیہ میں ججز کی ایک بڑی تعداد عمران خان کی حامی ہے۔ وہ عمران خان کے حق میں ایسے فیصلے کر رہی ہے جو آئین اور قانون کی کسی کتاب میں نہیں لکھے۔ وہی نا بدلاؤ دیتے ہیں، why he got the authority to do it? No, but no. Can't get advantage دے رہے ہیں. I'm putting other things there. No. There is no other thing. And also questioning کہ sumo moto کیوں دیا گیا ہے؟ بھائی وہ تو اس کا حق ہے، اس میں عمر کو تو نہیں ہے دیا، یہ تو پہلے کا ہوا ہے۔ نہیں مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے۔ یہ if you have to change the laws and change them when you are villa نا, not at this time. عمران خان کو ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی کی سہولت کاری بدستور حاصل ہے۔ ٹی ٹی پی کے خوارج اعلانیہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بی ایل اے اور مہرنگ بلوچ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ وہ تمام گروہ اور جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں جن کو پاکستان اور فوج کا دشمن مانا جاتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ کھل کر عمران خان کے حق میں سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں 8 فروری کے انتخابات ہوتے ہیں، ابھی نتائج آنا شروع بھی نہیں ہوتے کہ کئی اینکرز اور ٹی وی چینلز عمران خان کی جیت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اب تک 101 سیٹوں کا جو نتیجہ جیو نیوز کو غیر حتمی، غیر سرکاری مگر 100% نتیجہ ہمیں ان کانسٹیٹوئنسیز کا موصول ہوا ہے، اس میں قومی اسمبلی میں 101 سیٹوں میں لیڈ کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نظر آ رہے ہیں۔ ملک ریاض کا 4 ارب روپے میڈیا پر بولنے لگتا ہے۔ پی ٹی آئی فارم 45 کا پروپیگنڈا کرتی ہے، لیکن اس کو نہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے نہ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے، بلکہ عمر ایوب اپنی سیٹ پر عدالت سے سٹے بھی لے لیتے ہیں۔ نئی حکومت بننے کے چند دن بعد عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ان کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر پاکستان کا دیوالیہ ہونا یقینی تھا۔ کہ پاکستان کو جن معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس کے صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی حکومت وجود میں آئی ہے اس کو اب آئی ایم ایف کی طرف ہی دیکھنا ہے اور بیل آؤٹ پیکج کی طرف جانا ہے، اور اسی اسنا میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس کی کاپی آپ اس وقت ڈان نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک ہفتے بعد پی ٹی آئی یورپی یونین کو خط لکھتی ہے کہ پاکستان کا جی ایس ٹی پلس سٹیٹس ختم کر دیا جائے،
ساتھ ہی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں کہ پاکستانی تاجروں کی مصنوعات نہ خریدی جائیں۔ پھر ڈنمارک کی مرس کمپنی جو پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ای میلز اور ٹرینڈز چلا کر سرمایہ کاری سے روکنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی اکسانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ریمیٹنس نہ بھیجی جائے۔ آپ ہر قسم کا پیسہ بھیجنا آپ چھوڑ دیں پاکستان، یہ پوری کیمپین اب چلانی پڑے گی، لیکن یہ 1-2 مہینے میں گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر آپ پیسہ بھیجنا چھوڑ دیں گے۔ غرض پی ٹی آئی نے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام جتن کیے۔ حکومت پاکستان میں خوراک کی کمی پر قابو پانے کو SIFC پروگرام کے تحت بنجر زمینوں کی آباد کاری کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں کو دعوت دی جاتی ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے SIFC کو فراڈ قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب سعودی عرب سرمایہ کاری کرنے آتا ہے تو شیر افضل مروت ان پر الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت سعودی عرب نے گرائی تھی۔ یہی 2 ممالک ہیں، سعودی عرب اور امریکہ، جن کے تعاون سے تو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ آپ سعودی عرب کو بھی امپلیکیٹ کر رہے ہیں بیچ میں؟ ڈیفینیٹلی کنڈیوٹ کا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب نے۔ حکومت افغانیوں کے انخلا کا فیصلہ کرتی ہے تو عمران خان اس کی پرزور مخالفت کا اعلان کرتا ہے۔ KPK کی حد تک انہوں نے افغانیوں کے انخلا کے عمل کو تقریباً غیر مؤثر کر دیا۔ حکومت دہشت گردوں کے خلاف آپریشن عزم استحکام کا اعلان کرتی ہے تو عمران خان اس کی بھی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں CM خیبر پختونخوا سے بریفنگ لی۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمین بیرسٹر گور کی صدارت میں، اور اس نے بریف کیا، CM KP نے بریف کیا کہ کوئی عزم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی، نہ انہوں نے منظوری دی ہے۔ جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے کھل کر KP میں بجلی چوروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ PTI وزیر اعلیٰ نے جرگہ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہر قسم کی اسمگلنگ کے لیے بارڈر کھول دیا جائے۔ اب PTI کھل کر ملک توڑنے کے بیانات جاری کر رہی ہے۔ PTI وہ سب کچھ کر رہی ہے جس سے ریاست کسی بھی طرح غیر مستحکم ہو سکے۔ ان سب میں PTI کا سہارا بنی ہوئی ہے عدلیہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کو 10 منٹ میں 51 ضمانتیں دیں۔ اتنی دیر میں درخواستیں پڑھی بھی نہیں جاتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان آئندہ بھی کوئی جرم کرے تو اس کو اس میں ضمانت دی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیریان کیس میں کہا کہ ٹیریان خود بھی آ کر کہہ دے کہ وہ عمران خان کی بیٹی ہے، ہم تب بھی نہیں مانیں گے۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو جیل میں ہر وہ سہولت فراہم کر رہی ہے جو آج تک کسی قیدی کو نہیں ملی۔ اڈیالہ جیل میں قید چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو جیل میں تمام سہولتیں دی گئی ہیں۔ جیل حکام کے مطابق جیل میں 8 کمرے چیئرمین PTI کے زیر استعمال ہیں، جبکہ ان کے کھانے اور علاج کے لیے 9 ڈاکٹرز ڈیوٹی پر ہیں۔ اس کے علاوہ ذرائع جیل حکام کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI کو ٹی وی کے 10 چینل دکھائے جاتے ہیں اور ہر گھنٹے بعد چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ بیڈ، میٹریس اور اخبار کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کرنے کے لیے سائیکل اور لوہے کا راڈ بھی لگایا گیا ہے، جبکہ جیل میں واک کرنے کے لیے 20 فٹ کا صحن بھی موجود ہے۔ کھانا پکانے کے لیے باورچی بھی دیا گیا ہے، جو چیئرمین PTI کی خواہش کے مطابق انہیں کھانا پکا کر دیتا ہے۔ جسٹس سمن رفت نے یہ بھی لکھ کر دیا کہ عمران خان کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جائے اور نیٹ کی سپیڈ کم ہوئی تو میں کمپنی کو عدالت میں طلب کروں گی۔ سب سے حیران کن کام سپریم کورٹ نے کیا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی 3 شقوں کو معطل کر کے PTI کو مخصوص نشستیں سونپ دی، جبکہ وہ کیس میں درخواست گزار بھی نہیں تھی۔ فیصلہ کرنے والے ججز نے خود کہا کہ ہم نے فیصلہ آئین نہیں بلکہ ضمیر کے مطابق کیا ہے، جبکہ اعتراض کرنے والے ججز نے لکھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کو معطل کر دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، یحییٰ افریدی ایک ہی لا فرم کے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کے حامی 6 ججز انہی کے بھرتی کردہ ہیں۔ They were already in the law practice, and we 3 of us, we formed a firm, and it's probably a rare thing that has happened. All 3 of us were later elevated as high court judges. All 3 of us served different high courts, and now all 3 of us, we are in the Supreme Court.
PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन 2 साल से कह रही थी। फिर PTI ने ऐसे इलेक्शंस करवाए जिनमें उनके 8 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स में से एक ने भी वोट नहीं डाला। इस जालसाजी पर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए गए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन में PTI रुकन राजा ताहिर की दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी थी। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की इस्तदा। PTI के हक में फैसला करने के फौरन बाद जज अमरीकी यात्रा पर जरूर जाते हैं। इमरान खान ने अदलिया से ज्यादा अमरीका पर तकिया किया हुआ था। वो अमरीका को एलानिया पाकिस्तान में मुदाखलत की दावतें दे रहे हैं। इस मुदाखलत को जायज बनाने के लिए वो अमरीका पर साजिश का इल्जाम वापस ले चुके हैं। 10 माह तक अमरीका पर साजिश का इल्जाम लगाने के बाद इमरान खान ने ये यू टर्न ले लिया है कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश अमरीका से इम्पोर्ट नहीं हुई थी, बल्कि जनरल बाजवा ने अमरीका को एक्सपोर्ट की थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि बतौर वजीर आजम इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट पर इल्जाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। अब वो अमरीका के साथ मिलकर कौम को आजादी दिलाना चाहते हैं। See, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. So we would appreciate here, because it makes a lot of it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. द इंटरसेप्ट ने अपनी खबर में कहा था कि डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने पाकिस्तान के सफीर को खबरदार किया है कि ज़ेर हिरासत इमरान खान की सेफ्टी अमेरिका की अहम तरजीह है। अमरीकी कांग्रेसी रहनुमा और फलस्तीनियों पर एटम बम गिराने के हामी ब्रेड शर्मैन ने इमरान खान और PTI के हक में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के नाम खत लिखा। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने इमरान खान के हक में करारदाद मंजूर की। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। ये अमेरिका में आज तक किसी मुसलमान रहनुमा के हक में नहीं हुआ था। इमरान खान ने 9 मुंतखब बरतानवी वजीर आजम से भी मदद मांग ली, जिसके जवाब में पाकिस्तान में तैनात बदनाम बरतानवी सफीर जेन मैरियट मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इसराइल ने अपनी तारीख में पहली बार पाकिस्तान में किसी जमात के हक में करारदाद पेश की है। पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात के लिए बानी PTI मौजूद शख्स हैं। इजरायली अखबार का दावा टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि बानी PTI ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इजरायली हुक्काम को पैगामात भेजे। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक करते हुए बानी PTI को इसराइल का हिमायती करार दे दिया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक बानी PTI इसराइल के हमख्याल सियासतदान, इसराइल के हामी और फौज के मुखालिफ हैं। इमरान खान के हक में मगरबी जरीदों में अब तक 150 से जायद मज़ामीन छपवाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चीजें आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के हाथों से फिसल रही हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे मुआशी तौर पर संभल रहा है और दिवालियापन का खतरा टल गया है। और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 2 साल की कम तरीन सतह पर है और पाकिस्तान की माशी एक्टिविटी माली नज़्म ज़ब्त की वजह से बेहतर हुई है और पाकिस्तान में कारोबारी माहौल में बेहतरी और तवानाई के शोबे की सलाहियत बेहतर हुई है और मार्केट के मुताबिक शरह तबादला की वजह से भी माशी बेहतरी हुई है। एक अजीब इत्तफाक ये हुआ कि ऐन उस वक्त जब इमरान खान ने PTI के सामने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत हो गई और बंगालियों ने शेख मुजीब को गद्दार करार देकर उसके बुत तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर PTI की हिमायत बढ़ने के बजाय तेजी से कम होती नजर आ रही है। खास तौर पर फेसबुक पर अब वो शदीद तनकीद की जद में है। इमरान खान के हवाले से अब कुछ सहाफी भी अपनी राय तब्दील कर चुके हैं। इमरान खान की बार बार अपीलों पर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा। घटती मकबूलियत को देखते हुए उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जरिए एक और 9 मई करवाने की 3 कोशिशें ऊपर नीचे की। पहले 8 सितंबर संगजानी जलसे में ऊट पटांग हरकतें की, फिर 21 सितंबर को लाहौर काना में
और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद धरना। पंगा मत लेना, मैंडेट छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो? लेकिन इन तीनों मौकों में रियासत ने इंतहाई बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लिया और लीबिया 2.0 होने नहीं दिया। हामी जजेस की एक बड़ी तादाद होने के बावजूद इंसाफ की चक्की आहिस्तगी के साथ घूम रही है, जिसमें पीटीआई को अपना बहुत कुछ पिसता नजर आ रहा है। जमात बहुत बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। जेल जराए ने अलीमा खान, बुशरा बीबी और इनकी बेटियों में तकरार की तस्दीक करती है। इस मौके पर बुशरा बीबी और अलीमा खान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। 5 बार इमरान खान अपने जलसे कैंसिल करवा चुका है। इमरान खान और पीटीआई शदीद इस्तराब का शिकार नजर आ रहे हैं। शायद पाकिस्तान के नसीब में लीबिया या इराक बनना नहीं लिखा और यकीनन पाकिस्तान इस साजिश पर गालिब आ रहा है। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।